relation between source and their effects at a distance. If we have to transport the energy at a distance, then both sources and their effects are related. That is a complete study at this private level about the electromagnetic field. Okay, we started the subject by stating that this is a model, electromagnetic field model, which is based on the deductive theory, deductive model. Okay, deductive model means that we have three major pillars, three basic. Okay, please try to cover as soon as possible. Thank you. We have three basic categories or three basic pillars which constitutes the electromagnetic model. Okay, the first thing is basic quantities. The second one is the rule of operation. Very good. The third will be fundamental laws. So first of all, we cover the basic quantities that deals with the electromagnetic theory, and obviously, according to the sources and their effects, we have different basic quantities. For the sources, we had yes, very good, and current density. Yes, charge density, current and current densities, and similarly, source quantities, source basic quantities, electric field, and yes, that's it. So these are the basic quantities that we are going to deal with in this subject, and whenever we discuss the electromagnetic field. At the second stage, at the second level, we discuss the rules of operation, mathematical tools, formulas that we are going to deal in this subject. So we started with the vector because we say that electromagnetic quantities, these are the vector quantities. So we revise the vector, simple vector addition, vector subtraction, and then vector multiplication, where we see a dot product, cross product, and vector triple, scalar triple product. So before going to jump into the next rule of operation or other operators, other tools, mathematical discussions, we have an intermediate step. You know, we state that the quantities, the basic quantities that we say just of electromagnetic theory, these are dependent on two. For example, any electromagnetic quantity depends on two variables, space and time. Okay, so when we are going to discuss space, it's very much logical that first we know that in which space we are working. Our problem, our geometry, in which space our geometry is. Either we are going to discuss to deal with a long line of charge, a copper wire, a cube, a square, and their effects. For example, a long wire, a long charge line radiating in the free space, then we have to deal with the spherical coordinates, a sphere. Okay. So that's why before going to discuss any other operator, we will first have a look at the coordinate system. Okay, and in this subject we are going to discuss orthogonal. Coordinate system. Okay, as you can see, we have some questions for the illustration of these models. But first we will have some general discussion about it. पहले हम आपको generally describe, generally equations हम आपको share करते हैं that how these parameters or these coordinate system will work. Okay. Then we will discuss some specific coordinate system. There are a number of orthogonal coordinate systems, but we are going to discuss the three fundamental, basic orthogonal coordinate systems: Cartesian, well-known, cylindrical, and spherical. These are the three coordinate systems that we are going to discuss here today. So, orthogonal means the entities, the surfaces, the dimensions that
are going to constitute this coordinate system. वो surfaces या lines, dimensions जो कि हमारे coordinate system बनाने लगे हैं, जिस coordinate system की हम बात कर रहे हैं, जिन spaces की हम बात कर रहे हैं, they are supposed to be orthogonal. Okay, so for example, just to have some analogy with your book, I am going to use the same variables that your book has. Okay, you could find some different variables in other literature as well. So let's suppose if you have three set of families, three dimensions, let's say u1, u2, for example, for the sake of simplicity, let's say with me x, y, z. Okay, हमने जाना कि जनरल डिस्कशन पहले करते हैं. ठीक, so these could be the three families which are going to interact orthogonally. U1 will interact with the U2 orthogonally, यानी कि एक दूसरे के normal हिट वाले होंगे. U2 will interact with the U3 normally. U1 will interact with the U3 normal, orthogonal. Okay, that's why it's called orthogonal coordinate system. Okay. So first of all, if we have to write a vector in any orthogonal coordinate system, then the vector u1, they are using that small a to demonstrate the unit vector and that capital A for the magnitude. Okay. For example, when we discuss Cartesian coordinate, it will be ax, ax. Okay, u1 is the x1. Okay. And moreover, when we will deal with the practical problems, 4x. Okay, then that will be the 4, and that will be the 12. Moreover, they have a cap here as well. So just to have some fluency in the writing. तो जल्दी से लिखने के लिए मैं ये आपके कैप्स या वगैरह इग्नोर करके जस्ट स्मॉल लेटर का मतलब होगा कि हमारा बस यूनिट वेक्टर हो गया और कैपिटल का मतलब है कि आपके पास जो मैग्नीट्यूड वेक्टर है. ठीक है, फॉर्मली इज इट ओके? ओके, सो इफ यू आर सपोज्ड टू राइट अ यूनिट वेक्टर, that's how you can write the unit vector. Without anything else. Okay. Okay. So after having the vector representation, they say basic properties of these family vectors. The first thing is cross. You remember cross product A cross B was equal to AB sin theta. Okay, and moreover we know that the result of a cross product is a vector. Two vectors having a cross product will give you a vector. Okay, two vectors having the dot products will give you very good a scalar product. Okay, so when we were discussing the vector, in which direction that vector will be, when two vectors are going to have A cross B in the last one. Okay, AB sin theta, and then there was a unit vector that was in the normal direction. Okay, AB and the unit direction. We know screw one example is screw gauge, door. Okay, AB and the output will be in the normal direction by following the right hand. जिस वेक्टर को आपने दूसरे वेक्टर की तरफ घुमाना है, मतलब if you are supposed to take A towards B, okay, the output will, the thumb will demonstrate the output. If you are supposed to take B towards A,
A towards B और B towards A. Okay, वो सारी बातें याद है ना मुझे? Similarly, we are going to put these things here as well. अच्छा, यहाँ पर आपकी आसानी के लिए उसने आपको एक और रूल दिया है. That was circular rule, if you remember. If you have remember that? X cross Y, Z, Y cross Z, X. Right? X cross Y will produce a Z. You have only 3 options, ना? आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं? 3. 2 की क्रॉस प्रोडक्ट होगी तो नतीजा क्या निकलेगा? तो थर्ड होगा. U1 क्रॉस U2 will 3. You don't have any other option. आपने अभी बात की ना क्रॉस प्रोडक्ट में. That the resultant vector will be in the normal direction. The normal direction that is not in the same plane. Okay? इस पर सारी डिस्कशन हमने लास्ट में की थी. So अगर U1 और U2 क्रॉस हो रहे हैं तो रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो U3 डायरेक्शन में जाएगा. U2 और U3 तो रिजल्टेंट वेक्टर U1 में जाएगा. U3 and U1 रिजल्टेंट वेक्टर will be the U2. That's what they are saying. Huh? Is something funny there? U2 cross U3, U1, G. This U means these unit vectors. Okay? Sorry, is that? No, you said something. बच्चे कह रहे हैं वीडियो में हम नहीं आ रहे. You can rotate the camera. Okay. So, if you have a cross product, okay, then these vectors will behave like this. No matter what the vectors are, x, y, z, r, theta, phi, theta, phi, जो आपके पास है वो r. लेकिन be careful, just like a cross b is not equal to b cross a, but in the opposite direction, there will be a negative sign. That's why u cross, u2 cross u1 will be equal to minus 90. Okay? Okay, the second thing was about the, I think this will help you to memorize that formula. Akif, क्या? Okay, क्या? Getting my point? Okay. This circle will help you to memorize the cross product. U1 cross U2 positive. U2 cross reverse, that will be negative. Okay. Dot product. Would you remember A dot B was AB? Okay. Cos gives you maximum when the angle is 0. R1 2 vectors are in the same, are parallel, are in the same plane. Okay. So that's why if you have U1 dot U2, that will be equal to, why? Yes, they are in orthogonal planes. U1 is in one plane, U2 is in any other normal plane. Okay, so angle between these two planes or these two dimensions is 90 degree. U1 is in one plane. पक्की बात समझ आ रही है कि नहीं है वैसे? क्या बात समझ आ रही है? U1 x डायरेक्शन में है, तो U2 y डायरेक्शन में हुआ, राइट? और हमने पहले जब हमने बैकग्राउंड क्लियर किया, जब हमने ये बात की, देखिए दोनों ऑर्थोगोनल, ओके? So they have 90 degree between them. That's why cosine of 90 is equal to. But when we are going to discuss U1 dot U1, you will get 1. And that's a dimensionless, that's not a vector, that's a scalar quantity. As we were expecting, कि हमारे पास जो डॉट प्रोडक्ट है वहाँ पर आपके पास जो है
क्वांटिटी स्केलर ओके ओके नाउ लेट्स डिस्कस सम इंपॉर्टेंट थिंग coordinate system. It's not always true. It's not always true that all of the families, the orthogonal coordinate families, are lengths or they have the unit of length. Like Cartesian coordinate system, कि x, y और z जो है वो आपके पास लेंथ्स की यूनिट्स में 3 meters in the x, 2 centimeters in the y, ठीक है 2 feet in the z. इसके अलावा भी आपके पास ऑप्शन हो सकते हैं लाइक इफ यू आर गोइंग टू डिस्कस अ सिलेंडर और यू आर गोइंग टू डिस्क्राइब अ स्फीयर देन यू आर गोइंग टू डिस्कस विद द नॉन लेंथ यूनिट्स है वहां पर आपके पास डिग्रीज भी तो है ना इट इज नॉट सो अगर आपके पास कोई ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम है जहां पर आपके पास नॉन लेंथ यूनिट्स हैं इफ यू हैव सम नॉन लेंथ यूनिट इन योर कोऑर्डिनेट सिस्टम देन इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द डिफरेंशियल चेंजेस ये लफ्ज सुना आपको डिफरेंशियल कैलकुलस इंटीग्रेशन हाँ ना इंटीग्रेशन में आप dx dy d theta it could be there. So when you have these integrals that we will discuss in next lecture ठीक है इंटीग्रल्स वेक्टर इंटीग्रल्स तो वहां पर आपके पास डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम जहां पर आपको लेंथ की यूनिट्स नहीं है वहां पर आपको जो डिफरेंशियल चेंज इन लेंथ डिस्कस करना तो कैसे करना ओके दैट्स व्हाई they have converted that non-length unit in the length. For example, आपके पास कोई ऐसी डायमेंशन है, for example U2, which is not the unit of length, ये डिग्रीज में, क्या? पक्की बात है? क्या है? Okay, speak loudly. You are in the meeting. Okay. अगर आपके पास कोई डिग्रीज के अंदर यूनिट है या कोई ऐसी चीज है जो कि नॉन लेंथ की लेकिन आपके पास जो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स जिनसे भी आपको वास्ता पढ़ने वाले वो लेंथ में डील कर रहे हैं तो इट इज नेसेसिटी दैट यू आर सपोज यू शुड कन्वर्ट दैट नॉन लेंथ इन द लेंथ डिग्रीज जो है थीटा जो है जो फाई जो है उसको आपको लेंथ के पैरामीटर में लेंथ की यूनिट में कन्वर्ट करना कैसे कन्वर्ट करना है उसके लिए वो आपको कहते हैं कि जनाब AU1 DL1 टोटल चेंज इन लेंथ ये भी हम आपको सिमुलेशन वगैरह में चीजें दिखाने वाले हैं ठीक है यहां से आपकी सिमुलेशन का काम शुरू होगा इन वन डायरेक्शन It is the basic formula for the differential change in length. आपके पास एक वेक्टर है जो कि इस वक्त हवा में अगर मैं इसी रूम को कंसीडर करता हूँ विच इज इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और मैं एक वेक्टर ड्रॉ करता हूँ विच इज माई मार्क एक वेक्टर जो कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर एंड हो रहा है बेटा मेरे पास ठीक है ट्राई टू अंडरस्टैंड अभी जो आपका मार्कर है इसकी प्रोजेक्शन x में और अगर x आपकी तरफ जा रहा है व्हाट वाज दैट दैट्स आवर ओरिजिन इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट वो कॉर्नर जो है ठीक है जो डायमेंशन आपकी तरफ आ रही है ये x होगी जो डायमेंशन इस तरफ आ रही है ये y होगी और जो डायमेंशन इस तरफ जा रही है दैट्स z ओके गॉट इट अब आपके पास ये जो वेक्टर था मेरे पास अगर मैं इसकी प्रोजेक्शन लूं इन तीनों का तो
तो इसकी प्रोजेक्शन x में इस तरह से, y में इस तरह से और z में इस तरह से, ठीक है। इन अदर वर्ड्स ये जो वेक्टर मैंने इस तरह से टिल्डेड फॉर्म में रखा हुआ है, इट हैज ऑल द थ्री कंपोनेंट्स, इट हैज x, it has y, it has z. How much x, how much y, how much z, that will be told to you by this expression. Okay? Clear हुई आपके पास कि differential change in length, ये पूरी लेंथ है ना, लेकिन ये x डायरेक्शन में नहीं है, ये y डायरेक्शन में भी नहीं है, ये z डायरेक्शन में भी नहीं है, ये इन तीनों में है। किस डायरेक्शन में कितनी है इसको डिस्क्राइब करने के लिए आप इस तरह का एक्सप्रेशन लिखते हैं कि x में इतना है, y में इतना है, z में। अब अगला प्रॉब्लम हमारा क्या आ गया कि अगर यही वाला प्रॉब्लम, यही वाला मार्कर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ना और सिलेंड्रिकल में स्फेरिकल में हो तो फिर हम क्या करें? तो फिर आपके पास एक मैट्रिक है, एक कन्वर्जन यूनिट है व्हिच इज ये h जो कि हम अपने स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखेंगे, आपके किसी भी नॉन लेंथ यूनिट को लेंथ के यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है। ओके, सो आपकी ये जो लेंथ है इट विल बी जो कि वेक्टर्स की एज है ओके। सो तीनों या दो या एक, जब कोई भी एक कंपोनेंट आपके पास ऐसा आ जाता है जो कि नॉन लेंथ में, तो आपको उसको लेंथ में कन्वर्ट करना है बाय यूजिंग दैट एज मैट्रिक, ठीक है। वो क्या है, वो स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम में आता है। ओके ओके जी, अभी हमने बात की डिफरेंशियल चेंज इन लेंथ। आपके इंटीग्रल्स लाइन इंटीग्रल्स हो सकते हैं, आपके इंटीग्रल्स वॉल्यूम इंटीग्रल्स हो सकते हैं, और मोस्ट क्रिटिकल इंटीग्रल्स सरफेस इंटीग्रल्स। वॉल्यूम इंटीग्रल्स, वॉल्यूम क्या होता है जनाब? वॉल्यूम का सिंपल सा फॉर्मूला लेंथ विड्थ हाइट, लेंथ विड्थ एंड हाइट तीनों ही अगर हमारे पास लेंथ की यूनिट है dl dl 1 2 ठीक है, दिस विल गिव यू differential change in volume. If you have to take differential change of volume, then you are supposed to multiply differential changes in the lengths, all the three lengths, dx, dy, dz, and they will give you differential change in volume. ये क्या होता है? dv differential change in volume, ये भी हम सिमुलेशन में आपको दिखा देंगे। अब ये बस आखिरी बात है। ओके, फिर फर्स्ट अगर आपकी यूनिट्स, अभी बातें गौर से सुनिएगा, ये एग्जाम की बात हो रही है। अपना सवाल था ना कि पेपर कैसा आएगा, पेपर ऐसा आएगा। आप लोगों ने इंटीग्रल सॉल्व कर रहे हैं, रिटर्न स्टेटमेंट होगी, प्रैक्टिकल लाइफ के प्रॉब्लम है, रिटर्न स्टेटमेंट, एंड यू हैव टू जज योरसेल्फ दैट ईदर यू हैव टू फाइंड आउट द dl differential change in length, you have to integrate on the length on the contour, you have to integrate on the surface, or you have to integrate on the wall। ठीक है, जो भी आपने इंटीग्रेशन समझी होगी तो उसके लिए आपको फिर डिफरेंशियल चेंज इन लेंथ dv ds की जरूरत पड़ेगी, जो कि अभी हम आपसे शेयर करते हैं। ओके, सो अगर आपके पास कोई एक यूनिट या सब यूनिट्स लाइन में नहीं है, if any of your parameter or all the parameters are not the dimensions of length, then you have to use that। dl1 का h1 आ गया, dl2 का h2 आ गया, dl3 का h3 आ गया, and that's it। Understand? You are supposed to ask this question. I know you want to ask this।
No, please put it here. Okay. Which of the part is here that you are not getting? ये जो लास्ट वाली क्वेश्चन की है इसकी वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? तीनों लेंथ्स को आपने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? डिफरेंशियल वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा? तीनों डिफरेंशियल लेंथ्स को आपने मल्टीप्लाई करना है, ठीक? जो कि आपने यहाँ पर किया। अब अगला मसला ये आ गया कि आपकी जो लेंथ है वो यूनिट ऑफ लेंथ है, वो कर्व है, अभी हम बात करेंगे। लेकिन फॉर्मूले में, मैथमेटिकल फॉर्मूले में तो आपको डिफरेंशियल लेंथ ही देनी थी, लेकिन है कर्व। तो अब आप क्या करते हैं, आप उस कर्व को लेंथ में कन्वर्ट करते हैं। दैट वाज द कर्व एंड यू कन्वर्ट इट इन द लेंथ। आपने अपनी जरूरत के तहत कैसे कर देंगे, अन्य बात नहीं कर सकते। नॉट इमेजिन, दे हैव रिड्यूस्ड द थिंग। उन्होंने कहा है कि अगर आप अपने इस कर्व को इस एज से, वेरिएबल है, स्पेसिफिक अभी नंबर नहीं, 2 से 3 से 4 से जो उन्होंने फाइंड आउट किया, मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर ये कर्व आपका स्ट्रेट लाइन में, अक्सर में नहीं रहता, तुम हो जाता। तो में से तुम तक का सफर इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होगा, ठीक है? यू हैव टू ड्रिंक समथिंग, ओके? दैट विल बी अस्टेट। तो जो आपने एक के साथ किया, इट वाज dr1, इसका पोर्शन आ गया h1 dr1. इट इज अ नंबर, इट इज अ स्केलर क्वेश्चन, ओके? सो दैट्स हाउ यू कैन समराइज इट, यू कैन मेक इट सिंपल। बेसिकली इट वाज, ठीक है ना, h1 dr1, h2 dr2, h2 dr3, as these are the numbers matrices which could be take separately as a scalar number. The most important integrals, surface integrals. I need your immense attention. Surface integrals से encounter करते हैं आपके पास दो तरह से प्रॉब्लम आ सकती है। पहले प्रॉब्लम नीचे लो कि आपको ये पता ही नहीं है कि मैंने किस सरफेस पर इंटीग्रेशन करना। Or in other words, you are supposed to find out the surface. ठीक है? उसकी निशानी है नॉर्मल वेक्टर। हर सरफेस को डिस्क्राइब करने के लिए एक वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर दिया है। अगर आपका फर्स्ट सरफेस जिस कोऑर्डिनेट में, फॉरगेट इट, then I am the normal vector on the floor. Is it so? ठीक है? So if someone told you that, if someone asked you which is the surface where your teacher is standing, then yes, आपको automatically पता चल गया, you automatically got that they are talking about the flow. Okay? Now, which of the surface where that marker is normal, that white board, yes, ये मार्कर किस सरफेस पर नॉर्मल है? व्हाइट बोर्ड। अब थोड़ी देर के लिए आप x y z की इमेज में आ जाए। अभी आपने क्या कहा था, x इस तरफ था, y इस तरफ था, z इस तरफ था। तो आपका मार्कर किस सरफेस में नॉर्मल है? y इज अ सरफेस, सरफेस टू डायमेंशंस को मिला कर x y, x उस तरफ है, y इस तरफ है, z इस तरफ है। ओके ओके ओके, ट्राई टू विजुअलाइज। यहां से अगर मैं यहां पर जाता हूं तो मेरी कौन कौन सी डायमेंशन छोड़ देंगे? z चेंज हो गया, ठीक है, मैंने हाइट पे कुछ करता है, y भी चेंज हो गया, तो y में कुछ किया, x तो मेरा चेंज नहीं हुआ। सो ये सारी की सारी सरफेस y z
पहली बात अगर अभी कार्टेशियन में समझ लेंगे तो आसानी होगी, स्फेरिकल में जाके प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट पॉइंट एट दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम। हाँ भाई साहब, ठीक है। टू थिंग्स, if you came to know about the normal vector, then you will automatically, you should automatically judge the surface. Okay? Now if I send an arrow on that wall, अब मैं आपको बता दूं कि मेरा एरो जो है वो y डायरेक्शन में, तो क्या आप जज कर लेंगे कि मैं किस सरफेस की बात कर रहा हूं? कौन सी सर्विस? वाई डायरेक्शन में मेरा एरो है जो कि मैंने थ्रो किया है, नॉर्मल थ्रो किया है, 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए थ्रो किया। किस सरफेस में जाके हिट करेगा? एक्स। सरफेस 2 से मिलकर बनेगा। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट द XZ सरफेस। ओके, जब वो सर्फेसिस की बात करते हैं, ठीक है, DSN, N stands for normal, and there is a unit vector here जो कि डिस्क्राइब करेगा कि अगली दो सर्फेसिस कौन सी, DL1, DL2, DL2, DL3, DL1, DL3, यही तीन सर्फेस हो सकती है ना भाई। फ्लोर होगा, उसका मिमिक ऊपर होगा, ये वॉल उसका मिमिक, ये वॉल उसका मिमिक। एक और वैसे भी कॉमन सेंस की बात है, तीन तो फैब्रिक है, तीन डायमेंशन, सरफेस दो से मिलकर बन रही है। एक के बारे में आपको बता दें तो बाकी दोनों ही रहती है ना। अगर आपको बता दिया कि यूनिट वेक्टर x डायरेक्शन में, नॉर्मल वेक्टर x डायरेक्शन में, तो सरफेस बताएं सिंपल। लेकिन आपको विजुअलाइजेशन होनी चाहिए, आपका कांसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आप किस डायरेक्शन से कैसे बात करते हैं। ओके, जो टाटा तरीका नहीं होता। ओके जी, अगर ये लेंस आपकी मैट्रिक्स नहीं है, अगर ये लेंस अगर ये आपकी डिफरेंशियल चेंज इन लेंथ, यूनिट ऑफ लेंथ नहीं है, then you need to convert it in the length, right? So you are supposed to multiply a metric, a converging parameter. Okay? So, okay जी, now let's start some simulation. हम कार्टेशियन, सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट की ये जो सरफेस DSN डिफरेंशियल चेंज इन लेंथ है और डिफरेंशियल चेंज इन वॉल्यूम है, और ये कोऑर्डिनेट सिस्टम्स बनते कैसे हैं, अब हम किए वाली डिस्कशन। ओके, जैसे कि थ्री सर्फेसेस, फॉर एग्जांपल लेट्स स्टार्ट विद द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, और ये जनरल सी बात करते हैं। फॉर द टाइम बीइंग लुक एट मी, कंसंट्रेट ऑन any two surfaces, चाहे वो कार्टेशियन में हो, सिलेंड्रिकल में हो, स्फेरिकल। When two surfaces will interact, they will produce a line. Please try to understand it. Two surfaces orthogonally interact होने लगे, they will produce a line. Do you agree with that? ये एक सरफेस इसको नोशन कर, ये जब इंटरसेक्ट करेगी, ये सरफेस जब इंटरसेक्ट करेगी इससे, ठीक है, when one surface will intersect with the second surface, regardless they are in Cartesian,
cylindrical, orthogonal. Okay? Then they will result in a line. जहां पर उनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स होंगे, अगर आप सब लोग उन सबको अलाइन करें तो फिर आपके सामने लाइन आएगी. एग्री विद दिस? And when a line resultant of two surfaces, हम three surfaces की बात कर रहे हैं, remember this. दो surfaces ने intersect किया तो एक line आ गई. And when that line will intersect with the third surface, two surfaces, resultant of two surfaces will interact with the third surface. So what will be the result? A dot. Where? ठीक है, जहां पर ये और ये इंटरसेक्ट आपस में कर रहे हैं, दैट विल बी आर डॉट. ओके, where this line intersect with the third surface. Okay, so that's the way they have constituted your coordinate system. जैसे कि आपने थ्री सर्फेसेस को इंटरसेक्ट करवाना है, और जब आप इंटरसेक्ट करवाएंगे तो आपके पास एक पॉइंट आ जाएगा विच इज अ यूनिट सेल, जिसको आप इंटीग्रेट करेंगे, यू विल हैव द कंप्लीट ज्योमेट्री. एंड द प्रॉपर्टी, द बेस्ट प्रॉपर्टी ऑफ दैट यूनिट सेल इज कि ये आपकी तीनों, आपके पूरे कोऑर्डिनेट सिस्टम को मिमिक कर रहे हैं. इसके अंदर वो तमाम प्रॉपर्टीज हैं जो कि आपके कोऑर्डिनेट सिस्टम के हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन. और जितनी भी हमने थ्योरेटिकल बातें की हैं, लेट्स स्टार्ट. It is a differential volume that you are watching here. It is a differential volume that you are watching here, जिसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं. ठीक है, it has the surfaces, this is the surface. Differential change in surface. अभी मैं इसको अभी लेके आते हैं अभी पहले. और this is the differential change in length. Okay, and this whole is the object, differential change in volume. Okay, हम पहली बात करते हैं कि जनाब ये सरफेस, ये जो आपके पास डिफरेंशियल वॉल्यूम आया, ये बना है. अगर आप लोग अपनी बुक खोलें तो आपको मेरे साथ चलना मेरा आसान है. वी हैव बुक शॉर्ट फॉर्म, या इट्स ओके, यू कैन ओपन द बुक. आगे I want you to go at page number 23. Page number 23, figure 2.10. Page number 23, orthogonal coordinate system. Page number 23. हाँ, तो मैंने पढ़ा. पेज नंबर 23. Okay, they had intersected the three planes. Each plane is representing one surface. Okay, dx, xy, yz, zx. All remember. If I highlight. It is the surface
जी, अगर आप इसको अपने वॉल से, अपने रूम से मिमिक करना चाहें तो आप देख सकते हैं कि ये अगर मैं इसे किसी भी पॉइंट के ऊपर यहाँ से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव करना चाहूँ तो मैं z और y में मूव कर रहा हूँ, मैं x डायरेक्शन में बिल्कुल मूव कर रहा हूँ। ये जो आपकी वॉल है, सी y, अगर आप इस वॉल पर कहीं पर मूव कर रहे हैं तो यू आर मूविंग ऑन द yz plane. Okay, so that's why if I have to integrate on that wall, I say differential change in volume or differential change in surface in yz, d by dc. Okay, okay, the next page similarly ये आपके पास है ये आपका काइंड ऑफ फ्लोर हो गया एक्स वाई। अगर हम इन तीनों को इंटरसेक्ट करवाते हैं, जस्ट लाइक वी गिव यू अ डेमो कि दो सरफेसेस को अगर मैं इंटरसेक्ट करवाऊंगा एक लाइन बनती है कि जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं ये वो पोर्शन जो कि आपकी लाइन है, ठीक, जो कि अभी हमने आपको डेमो करके दिया। और अगर फिर आप तीसरी प्लेन को भी ले लें साथ इसके तो फिर आपके पास ये बॉक्स हो जाएगा, ठीक है। दिस इज दैट बॉक्स विच इज शोन एट फिगर 2.11। अगर आप इन तीनों सर्फेसेस को इंटरसेक्ट करवाएं तो आपके पास एक डिफरेंशियल वॉल्यूम आ जाएगा, और आप इन डिफरेंशियल वॉल्यूम को इंटीग्रेट करें तो फिर आपके पास पूरी की पूरी ज्योमेट्री जो भी आपकी थी, सोर्स है या फील्ड है, वो आ जाएगी। ओके, हम इसका अगर मैं इसकी अच्छा ये रहा डिफरेंशियल वॉल्यूम। डिफरेंशियल वॉल्यूम डिफरेंशियल चेंज इन लेंथ 1, 2 एंड 3 तीनों डिफरेंशियल चेंजेस को आप करेंगे फिर आपको पूरे का पूरा वॉल्यूम। लेकिन व्हेन यू आर गोइंग टू डिस्कस विद द सरफेस, दिस सरफेस, you can align it with the coordinate system. That surface is in the xz, x और z, ठीक है। इस तरह ही आपके पास दूसरी सरफेस, and this is the third surface. Okay, so they could ask you by giving a normal vector, ठीक है, कितना y डायरेक्शन में आपका नॉर्मल वेक्टर है तो सरफेस बताइए, तो आपकी सरफेस x और z है। कहते हैं कि x डायरेक्शन में आपका नॉर्मल वेक्टर है तो आपकी सरफेस y z है। ओके, एंड देन डिफरेंशियल चेंज इन दैट। Whereas you want to ask something, this is the differential change in z, this is the differential change in y, and this is the differential change in x. Okay, so that was all about the Cartesian coordinates. Let's move towards cylindrical coordinates. Okay, for the cylindrical coordinate system, we say okay, so please go to figure number 2.14. सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को बनाने के लिए वो कहता है कि आपको दो शीट्स
दो सर्फेसेस, दो प्लेन्स हैं। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, in the cylindrical coordinate system you have r, phi. कल के हमारे लेक्चर में हम कार्टेशियन से सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल से कार्टेशियन, स्फेरिकल से कार्टेशियन और कार्टेशियन से स्फेरिकल कन्वर्जन जो है वो हम कल करेंगे। आज जस्ट हम सिर्फ कोऑर्डिनेट सिस्टम्स को that G is same as we had in the Cartesian coordinate system. Okay, जो सरफेस ये टॉप वाली वहां पर थी, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में टॉप की सरफेस थी जो कि आपके Z एक्सिस को बनाने में हेल्प दे रही थी, ठीक है, वो यहां पर भी सेम है, which is this. डिफरेंस किस चीज में है? डिफरेंस इज रोटेटेड ये जो आपके पास एक टिल्डेड किस्म की प्लेन है, ये आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखिए, ये जो आपके पास प्लेन है इसको आप देखिए, आपका फोकस जो है वो इसके ऊपर, ये फिलहाल 45 डिग्री पर है। Did you notice the movement? ये यहां से यहां पर मूव करके, ओके, लेट मी डू इट वन बाय वन। ओके, ये ओके, इफ दिस इज योर फ्लोर, आपको फ्लोर में चाहिए और वो आपका ओरिजिन है, तो ये जो भी हमने सरफेस आपको दिखाई है, इसमें कैपेबिलिटी है कि इस तरह से रोटेट कर सकती है। इसकी इस रोटेशन से, ये जो भी हम रोटेशन दिखा रहे हैं, आपका फाई एंगल, ठीक है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो फाई एंगल है, स्टैंड अगली दफा पढ़ेंगे, अगली क्लास में, ओके, कंसिडर, ठीक है, कि जो फाई एंगल आपका आया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ये कहां से आया? क्योंकि जो प्लेन है आपकी, जो कि रोटेट करने की सलाहियत रहती है लाइक अ डोर, इट इज गिविंग यू द फाई एंगल। इसके साथ ही एक बहुत जरूरी बात अपने लिहाज से है, वो ये कि आपकी नोट कीजिए कि जो फाई डायरेक्शन है वो आपकी एक्स एक्सिस से निकलकर वाई एक्सिस की तरफ जा रही है। फाई जो आपका एंगल है, इट इज स्वीपिंग इन द एक्स वाई प्लेन, रिमेंबर दैट, ओके। The third thing is that arm, that cylinder is responsible for the arm. अगर आप इस सिलेंडर का रेडियस इंक्रीज कर देंगे तो आपकी आर की वैल्यू वेरी करेगी, ओके। नाउ कम टू द पॉइंट, अगर हम इन तीनों सर्फेसेस को इंटरैक्ट कर रहे हैं, यार आई नो यू गाइस माइट बी गेटिंग बोर्ड, गेटिंग बोर्ड, ओके। व्हाट इज द स्केल ऑफ बोरिंग फ्रॉम 1 to 10? 15? 9.5. Okay, let's have 5 minutes. Yes. Okay.